Now, our next disease that we are going to discuss is encyclostomasiasis. Encyclostomiasis. Okay. Now, the organism which is responsible will be Encyclostoma duodenale. Okay. This is the organism which is responsible for encyclostomiasis, that is Encyclostoma duodenale. ठीक. Now, it has monogenetic type of life cycle and they are having sexual dimorphism also. Males are different and females are different. There are some characteristic features by which we can differentiate between these males and females. Males are somewhat smaller and females are larger. And here also females will be most responsible for this disease. Why? Because they are going to lay eggs. Okay, females will be most responsible for this disease because they are going to lay the eggs. Now, this Encyclostoma duodenale, this is also called as hookworm. हुकवर्म क्यों बोला इसको? बिकॉज ये हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद में इट मेनली अफेक्ट्स आवर इंटेस्टाइन ओनली. ओके, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद में हुक्स बना लेता है. ओके, हमको पता है कि जैसे ये जो वर्म्स होते हैं इनके पास में हुक्स एंड सकर्स होते हैं जो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. तो जैसे ही ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो हुक्स का फॉर्मेशन कर लेता है और ये हुक्स के फॉर्मेशन से हमारे इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक जाता है. तो क्या करेगा? टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन. ओके, ये हमारी बॉडी से हमारी बॉडी को हार्म करके और हमारी बॉडी का नरिशमेंट लेगा. ओके, so this is also called as hookworm. Hookworm क्यों बोला? Because it is going to take more and more nourishment from our body. Now, the infective stage. Infective stage of this is also one larval form. Filariform larva. Filariform larva is the infective stage of this. इस स्टेज में जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा देन वी विल बी सफरिंग फ्रॉम encyclostomiasis. Okay, now we'll see the life cycle of it. And here the most affected organ is our small intestine and our lungs. मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स हो जाएंगे अवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अवर लंग्स. एंड जैसे हमने स्केरियासिस में देखा था कि उनको जुवेनाइल स्टेज से और वी कैन से दैट एम्ब्रियोनेटेड स्टेज से फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज एक्वायर करने के लिए फर्स्ट लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए सॉइल एक मैंडेटरी चीज है उनके लिए. हियर ऑल्सो soil is the mandatory thing, or we can say soil is the mandatory thing from which they can acquire the nourishment for their conversion into first larval stage. Okay, so now female lays egg, embryonated egg, and after embryonated egg they will be converted into first larval stage. फर्स्ट लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए उनके लिए क्या ज़रूरी था? सॉइल.
बिकॉज सॉइल में ही प्रॉपर उनको मॉइस्चर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है एंड टेम्परेचर मिलता है. Okay, the conditions which are appropriate for their conversion from embryonated egg to larval stage, वो appropriate condition उसको कहाँ से मिलेगी? सॉइल से. और जैसे ही वो सॉइल में गया, सॉइल में जाने के बाद में converted into the first larval stage. Okay, now this first larval stage is also called as rhabdity form of larva. You see, no, rhabdity form larva. This is the first larval stage. Okay, and now in this stage we will see that in this stage that larva will enter into our body. Okay, how this larva will enter into our body? When we come in contact with some contaminated food and water. Okay, so by that this larva will enter into our body. Now, the first larval stage in which this larva is entering into our body is rhabdity form. पर जब वो हमारी बॉडी में रैबिडिटी फॉर्म में ही प्रेजेंट है, या हम बोले कि जब वो हमारी बॉडी में रैबिडिटी लार्वा बन के रह रहा है, तब वो अफेक्टेड होगा क्या? नो, दैट विल नॉट बी अफेक्टेड. इस सिचुएशन में वो हमारी बॉडी को कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगा. बट रैबिडिटी फॉर्म से मैच्योर होने के बाद में जब ये लार्वा फिलैरिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर मैचुरेशन, मैचुरेशन होने के बाद में कन्वर्ट हुआ फिलैरिफॉर्म लार्वा में. अब ये सिचुएशन है जो हमको अफेक्ट करेगी. एंटर होता है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा के फॉर्म में और फिर मैच्योर हो जाएगा हमारे ब्लड में आने के बाद में इनटू फिलैरिफॉर्म लार्वा. ठीक, नाउ अब फिलैरिफॉर्म लार्वा जो है वो हमारे ब्लड में एंटर हो गया. ओके, अब ब्लड में एंटर होने के बाद में वो जाएगा इनटू अवर स्टमक, स्टमक से जाएगा टू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आ गया. स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये करेगा, कुछ वर्म्स जो रहेंगे वो हुक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यूअसली नरिशमेंट गेन करते रहेंगे. ठीक है, और कुछ वर्म्स जो रहेंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे. दे विल रैप्चर द म्यूकोसा ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, फिलैरिफॉर्म लार्वा में एंटर हुआ या वी कैन से फिलैरिफॉर्म लार्वा में मैच्योर हुआ, उसके बाद में स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में आया. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये दो काम करेगा, या तो वो हुक्स बनाएगा और हुक्स बनाने के साथ साथ में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा का सारा न्यूट्रिशन निकालेगा. ओके ना, या तो वो हमारी म्यूकोसा को क्रॉस कर देगा. ठीक, अब हमारी म्यूकोसा को उसने क्रॉस कर लिया है तो कहाँ आएगा? अब वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जा सकता है. ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो वहां पर उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो अगर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा और वहां पे वो ज्यादा अफेक्ट भी नहीं कर पाएगा तो दैट विल बी ईटन बाय आवर मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस से वो मैक्रोफेजेस विल अटैक ऑन दैट. ठीक ना, अब वो म्यूकोसा को क्रॉस करके जाएगा हमारे लंग्स में और लंग्स के बाद में जाएगा हमारे एल्वियोलाइज में. ठीक है, और द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस एनसाइक्लोस्टोमियासिस दे आर ऑल्सो हैविंग वन प्रॉब्लम ऑफ वेरी मच कफिंग. ओके, उनको बहुत ज़्यादा म्यूकस जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा कफिंग एंड स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है. ओके, तो अब उसने लंग्स को अफेक्ट कर दिया और एल्वियोलाइज में एंटर हो गया. जैसे ही वो एल्वियोलाइज में एंटर हुआ, एनी ऑफ द एंटीजन वो जब हमारे एल्वियोलाइज में जाएगा तो हमारे एल्वियोलाइज उसके अगेंस्ट में एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे. What will be that immune response? Production of mucus, one type of physiological barrier we can say, production of mucus. Okay,
तो एल्वियोलाइज ने उनके अगेंस्ट में म्यूकस का प्रोडक्शन करना शुरू किया एंड एज सुन एज एल्वियोलाइज स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, तो क्या होगा, दैट पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम कफिंग. Intense coughing will be one of the symptom, or we can say one of the factor which is associated this disease. ओके तो जैसे ही उसको कफिंग की प्रॉब्लम हुई तो सम ऑफ द वर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन दैट कफ. नो, उस कफ में बहुत सारे वर्म्स भी होंगे, तो वो सारे वर्म्स नाउ विल बी फ्रॉम एल्वियोलाइज. अब वो एल्वियोलाइज से आएंगे हमारे ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से इनटू आवर फेरिंग्स. और इफ वी spit out, if we are an adult, so we will spit out, and if we are not able to spit out that mucus, so we will gulp it up. Okay, no, so from alveoli they will be into bronchioles. bronchioles में जाने के बाद में जाएंगे वो ट्रैकिया में, ट्रैकिया में जाने के बाद में जाएंगे वो हमारे फेरिंग्स में, और फेरिंग्स में जाने के बाद में इफ वी गल्प इट अप, इफ वी गल्प इट अप देन दे आर अगेन entered into our small intestine. वो फिर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए और यहाँ तक आते आते दे एक्वायर देयर एडल्ट स्टेज. यहाँ पे आके उन्होंने अपनी एडल्ट स्टेज बना ली. एडल्ट स्टेज में आने के बाद में again male and female, and they do fertilization and they released egg. egg release हो गए. अब ये egg through fecal matter again they are present in our environment. okay, fecal matter से. अब एक बात, when again we gulp it up that mucus, हम अगर उस म्यूकस को वापस से गल्प कर लेते हैं तो वो हो जाएगा वापस से हमारे स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो दोबारा जाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ वर्म्स प्रेजेंट थे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थे. ओके, ऑलरेडी वो हुक्स बना के रह रहे थे. तो जब तक वो हुक्स बना के रह रहे थे तब तक वो हमारी म्यूकोसा को कंटिन्यूअसली इंजर कर रहे थे. कंटिन्यूअसली दे वर मेकिंग हुक. वो ज़्यादा और ज़्यादा डीप होते गए और ज़्यादा डीप होते गए और ज़्यादा डीप होते गए. ओके, तो उन्होंने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा थी और स्मॉल इंटेस्टाइन जो था उसको बहुत ज़्यादा इंजर कर दिया. तो क्या होगा, इस डिसीज़ का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक और इस डिसीज़ से होने वाला एक मेन the main thing by which we are being affected, that is chronic type of anemia. chronic anemia. ओके, इसमें क्या होगा, जो हुक्स बने थे या जो फिलेरिया, सॉरी वी कैन से दो वर्म्स थे, वो हुक बना के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेयर थी उसको बहुत ज़्यादा इंजर कर दिया. बहुत ज़्यादा इंजर करने से क्या होगा, वेरी मच ऑफ द ब्लड विल शेड आउट, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा. ओके, तो ज़्यादा ब्लड निकलेगा तो वी विल बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया. हम विल बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो गया है. ओके, तो ये हुआ हमारा एडल्ट कंडीशन में. और वी कैन से इन इन्फेंट कंडीशन ऑल्सो, चिल्ड्रंस में भी हो सकता है और एडल्ट्स में भी हो सकता है. और चिल्ड्रंस में अगर उनको अर्ली एज में हो जाता है तो देन दे आर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम मेंटल रिटार्डेडनेस. एडल्ट फॉर्म में हो गया, अगर हम एडल्ट हैं तो विल बी सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक एनीमिया. और अगर चिल्ड्रंस में हो गया इन देयर अर्ली एज देन दे विल बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल रिटार्डेडनेस एज वेल एज फ्रॉम दिस एनीमिया. ओके, सो अब इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या हुई, एम्ब्रियोनेटेड एग था, उसको उसका फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज एक्वायर करने के लिए, उसका फर्स्ट लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए मैंडेटरी था सॉइल. ठीक है, अब सॉइल में आ गया वो, उसके बाद में फर्स्ट लार्वल स्टेज भी उसकी एक्वायर हो गई.
फर्स्ट लार्वा स्टेज एक्वायर करने के बाद में जब वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ, दैट फॉर्म वाज इट्स रैबिडिटी फॉर्म ऑफ लार्वा, तब वो हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा। जब वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कन्वर्टेड इनटू द फिलेरी फॉर्म, जब वो रैबिडिटी फॉर्म से फिलेरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो होगी उसकी इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन बींग्स, और वी कैन से इन्फेक्टिव स्टेज फॉर अस। ओके, तब वो हमें अफेक्ट करेगा। उसके बाद में स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन में दो चीजें करनी थी उसको, एक तो हुक्स बना के सारा का सारा नरिशमेंट लेना था, और एक बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाना था। बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाके उसने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया हमारे लंग्स को और एल्वियोलाइज को। वहां पे भी ये हुक्स के थ्रू हमारे लंग्स को और एल्वियोलाइज को भी थोड़ा सा इंजर कर सकता है। ओके, सो हमारे लंग्स भी अफेक्ट हो गए और म्यूकस प्रोड्यूस हुआ बहुत ज़्यादा। तो म्यूकस के प्रोड्यूस होने से वी गल्प दैट म्यूकस अगेन एंड दैट वर्म वाज अगेन एंटर्ड इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। वो वापस से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया और वहाँ पे दैट कॉजेस क्रॉनिक अनीमिया। ओके, विल बी सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक अनीमिया एंड इन द when we are in early condition, और बच्चों में कैसा होगा, they will be suffering from anemia as well as in from mental retardation. Okay, so this was all about our encyclostomiasis. Next disease that we are going to take is enterobiasis. This disease is also caused by one kind of Escherichia helminthes only, and the causative organism is Enterobius vermicularis. Okay, causative organism हुआ Enterobius vermicularis, and this causative organism is also belonging to Escherichia helminths. Now, sexual dimorphism is present in this type of organism. Male and female are different from each other. Okay, ये हुआ इसका organism का characteristic. अब what happens in this disease is that, and this disease is generally common in children's. Common in children, and this organism is also called as pinworm. Pinworm इसको क्यों बोला? बिकॉज दिस डिसीज, इस डिसीज में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, और वी कैन से एक प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सिम्टम है कि इसमें देयर इज सम काइंड ऑफ इचिंग इन द एनस ऑफ चिल्ड्रन. They have the itching in their anus, and that itching resembles to the that अगर हम पिन चुभाएंगे तो that type of sensation, it resembles to that type of itching. जब हम पिन चुभाएंगे तब हमको जैसा sensation होगा वैसे ही होगा when they are having the itching in their anus part. Okay, so and here also the main responsible person or the main responsible will be the females. ज़्यादा हार्मफुल होती है, और द इचिंग इन चिल्ड्रंस इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन नाइट ओनली. इचिंग इन नाइट ओनली. क्यों नाइट में होती है? बिकॉज फीमेल जो है, फीमेल पिनवर्म जो होती है वो व्हेन दैट चिल्ड्रन हैज टेकन द फूड, खाना खा लिया, उसके बाद में दैट फीमेल पिनवर्म विल बिकम मोर एक्टिवेटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और जैसे ही फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो रात में ये वहाँ से नरिशमेंट लेके दे आर नाउ माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द एनस पार्ट. ओके,
अब माइग्रेट क्यों करेगा ये? माइग्रेट करने के लिए इसके पास में सिर्फ एक रीजन है, दे आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द एनस पार्ट ऑफ चिल्ड्रन फॉर लेइंग एग। एग ले करने के लिए वो चिल्ड्रन के एनस पार्ट में माइग्रेट करता है, एंड दैट माइग्रेशन एंड लेइंग ऑफ एग, these both things cause very much irritation in the anal part of children, which is the cause of this itching. Okay, and why this happens in night? Because night में ही generally female pinworm they migrate from the intestine towards the anus part, right? Now, so this itching is due to migration of female pinworm from intestine to anal part. Okay, and this irritation is responsible for itching, which resembles to the pin sensation. Okay, or we can say that pin pokey सेंसेशन, ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ पे पिन चुभा रहा है. ओके, एंड वो पिन चुभाने वाला सेंसेशन बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ फीमेल पिनवर्म फ्रॉम इंटेस्टाइन टूवर्ड्स द एनस पार्ट ऑफ चिल्ड्रन. और इसी के कारण चिल्ड्रंस आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली इन नाइट. ओके, दिस इज द ओनली रीजन. और ये जनरली देखा जाता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 7 years. देयर इज एन एस्टिमेशन कि हाँ 2 to 7 ईयर्स के बच्चों में जनरली ये देखा जाता है. ओके, अब क्या ये दिस इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज और नॉट? यस, इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. व्हाई? बिकॉज फ्रॉम चिल्ड्रन पेरेंट्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड. ओके, एंड क्या हम इस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन ओनली वी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस डिसीज. ओके, नाउ लेट अस सी द लाइफ साइकिल ऑफ दिस वर्म. Its life cycle will only start from embryonated egg. Embryonated egg था. अब ये embryonated egg, how this egg will enter into our body? Only through contaminated food and water. Okay, by contaminated food and water, or if there is less hygienicity at our home. So क्या होता है अगर हमारे घर में hygienicity नहीं है, if there is no cleanliness, so sometimes these eggs can also stick to the toys of the baby, or this can also stick to the furniture or in our bed sheet or all these things. So ये वहाँ पे stick हो जाता है, and whenever that child is going to whenever that child comes in contact with that thing, तो embryonated egg get transferred into the child. Okay, so how this is how the embryonated egg has been transferred into the body of child. Okay, अब embryonated egg है ये गया into child's body. Now it will be converted into a worm, or we can say that first larval condition will be there. Okay, now this embryonated egg has acquired its first larval condition. Okay, now अब first larval condition होने के बाद में that migrated to our small intestine. Okay, now up till here into the small intestine they have done 2 moltings. Okay, अब 2 moltings होने के बाद में into large intestine, and here they have converted into their adult stage. अब वो उनकी adult stage में convert हो गए हैं. Okay, now in the large intestine. अब adult stage में convert होने के बाद में they will be male and female.
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट ना, तो दो अलग टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे, मेल्स होंगे और फीमेल्स होंगे. अब दे विल परफॉर्म फर्टिलाइजेशन. fertilization and now after fertilization, okay, fertilization हो गया. fertilization हुआ इनका कोलॉन पार्ट में, ओके, कोलॉन पार्ट में इनका फर्टिलाइजेशन हुआ. और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में द मेल पिनवर्म जनरली डाइज. ओके, मेल पिनवर्म जनरली डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, एंड दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू फीकल मैटर. ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल पिनवर्म डाइज and removed out of fecal matter. Okay, मर गए और fecal matter के through they are eliminated out from the body of that child. Okay, now at this stage the female pinworm body is full of eggs. Now female pinworm body is full of eggs. Okay, अब this is the time when female pinworm will migrate to the anal part. ओके, अब जब उसकी बॉडी पूरा एग से भर जाती है, ओके, व्हेन द फीमेल पिनवर्म बॉडी इज फुल ऑफ एग, सो दिस फीमेल पिनवर्म नाउ इन द नाइट माइग्रेट टुवर्ड्स द एनल पार्ट, and this migration and laying of egg will create itching in the anal part of the child. Okay, now full of egg and now migrate towards the anal part and lays eggs in anus. So this will cause itching. Okay, now after itching this embryo these eggs are again released into environment. Some of the eggs will remain in the anal part and some of the eggs will released into the environment through fecal matter. Along with the fecal matter they have been released into the environment again. Now again environment release होने के बाद में they will be in the form of embryonated egg, और जैसे ही दूसरा बच्चा उसके कांटेक्ट में आया that will be suffering from this disease. Okay, अब इसका मेन कॉज है ट्रांसमिशन का, दैट वेन एवर द चाइल्ड इज फीलिंग द इचिंग कंडीशन इन हिज एनस और इन हर एनस, सो व्हाट विल दे डू, दे विल इच दैट पार्ट एंड दिस worms, or we can say that these eggs will come into their fingers or they will be embedded into the nails. So now their nails are also being affected from this eggs. Okay, now these from these embryonated eggs or from these infected nails they will take the food, or from this infected hand they will take the food and again they will eat that food. So from anal part that eggs have been transferred to the nails, and from nails they are again transferred along with the food to the body of that child. So एक cycle बन जाती है. Okay, until and unless this disease does not have any of the symptom other than the itching. बहुत ज़्यादा itching होती है, और एक और चीज़ होती है, जो भी बच्चा रहता है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है. It will be very much hungry after 2 hours or every after 1 hour. Okay, so this is the mode of transmission. Whenever that child will have the feeling of itchiness, so that will itch with his hand or her hand, and again that nails will be full of the infected eggs, and again they will be come into the body of that child, and from this hand or from this transmission they can be also transferred to their parents. Okay, so this was our last disease which was causing by the SK Helminths, that is
Enterobiasis, the causative organism for enterobiasis is Enterobias vermicularis belonging to the phylum Escherichia. Sexual dimorphism होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं. ओके, नाउ कॉमन होता है चिल्ड्रंस में, क्या बड़ों में नहीं होता है? होता है, बट because their immune system is strong, so that's why, and they also keep or maintain the hygienicity of their own. Okay, personal hygienicity is also the main reason for causing of this disease. Okay, so they maintain their personal hygienicity, therefore adults are not prone to such type of diseases. Okay, अब itching होती है, रात को होती है, in the night time only. Why? क्योंकि that female pinworm only migrate in the night time towards the anal area, okay, for laying eggs, and that the procedure of laying eggs and the movement of the female towards the anus, that is the only thing responsible for itching. ठीक, now अब द लाइफ साइकिल इज वेरी सिंपल. जैसे ही वो हमारी बॉडी में आया, उसने मोल्टिंग करना शुरू किया, और मोल्टिंग करने के साथ साथ में लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हुआ और हमारे कोलॉन पार्ट में आ गया. कोलॉन पार्ट में आने के बाद में एडल्ट फॉर्म में चेंज हुआ. अब एडल्ट बन गया है तो रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन किया मेल्स और फीमेल्स ने. ओके, अब रिप्रोडक्शन करने के बाद में दैट मेल विल डाई एंड दैट विल रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड थ्रू फीकल मैटर. ओके, अब उस टाइम के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन के बाद में ये फीमेल बाकी लार्ज इंटेस्टाइन के बाकी सारे पार्ट्स को भी अफेक्ट करने जाएगी. फर्टिलाइजेशन हुआ था कोलॉन में, तो ये स्प्रेड हो जाएगी इनटू कोलॉन ऑल्सो, इनटू अपेंडिक्स ऑल्सो, इनटू रेक्टम ऑल्सो. ओके, ये धीरे धीरे बाकी सारा, और वी कैन से दैट अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश करेगी. ओके, अपना मोस्ट ऑफ द एरियाज विल बी नाउ अफेक्टेड फ्रॉम दिस फीमेल पिनवर्म. वी कैन से ज्यादा एरिया उसने बढ़ा लिया, ज्यादा जगह पर माइग्रेट कर लिया, तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम होगी. ठीक है ना. अब मेल पिनवर्म आर डाइड एंड दे आर रिमूव्ड अलोंग द फीकल मैटर, और फीमेल पिनवर्म की बॉडी अब तक हो गई फुल ऑफ एग्स. अब फीमेल पिनवर्म बॉडी इज फुल ऑफ एग. नाउ she has to do, or she has to lays the egg somewhere. So what will she do? She will move outside of the body and she will come into the anal part of the child and lays her egg. अच्छा, एक बात और, वो बाहर ही क्यों आती है एग्स ले करने के लिए? अगर उसको इन्फेक्ट ही करना है तो रेक्टम पार्ट को भी इन्फेक्ट कर सकती है, वहां पे भी वो एग ले कर सकती है. ओके, वहां भी एग ले कर सकती है, कोलॉन में भी कर सकती है, या अपेंडिक्स में भी कर सकती है. उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है ना. तो किस लिए आती है वो ऑक्सीजन के लिए आती है. जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो एग्स ले नहीं कर पाएगी. बॉडी के अंदर उसको थोड़ा कम ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है फॉर लेइंग एग. तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, इसीलिए वो बॉडी से बाहर आती है, और बॉडी से बाहर आने के बाद में शी स्टार्टेड लेइंग एग. एंड द मोमेंट व्हेन शी स्टार्टेड लेइंग एग, दिस इज द time when the child is feeling, or when this child will have the feeling of itching. And as soon as the child started itching, his hands are also full of that embryonated eggs, or we can say of that eggs, and again put it in the mouth, and the cycle goes on continuously like this. Okay, so this was all about our the disease enterobiasis. Okay.